यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं हर एक जन, जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में, अपने हाथों को हिलाते हुए परमेश्वर की जीवित हुजूरी में उसके नाम को महिमा देते हुए अपने जीवन के अंदर जो गवाहियां खुदावन ने दी है, जो भलाइयां परमेश्वर ने करी है, अपने होठों को खोल के उन चीजों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, खुदावन के नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कहें आमीन। तो जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद हैं सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। ये समय गवाहियों को सुनने का, तो पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए विश्वास के साथ टेस्टिमनी सुने कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में बड़े और अद्भुत काम किए। टेस्टिमनीज आपके फेथ को बढ़ाती हैं, आपको समझ आती है कि परमेश्वर के लिए सब कुछ इजी है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। तो आइए इन वीडियो टेस्टिमनीज को देखते हैं। हालेलुया। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो आज भी बड़े और आश्चर्य कर्म करता है। तो एक ऐसी ही बहुत ही बड़ी गवाही को हम सुनेंगे। मैं 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜੋਬ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਗਰੋਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰੇਂਗਾ, ਲੋਕ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਹੀ ਰਾਤ ਭਰ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੋਬ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਜੋਬ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜੋਬ ਪਤਾ ਕਰਨੀ। ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ 20 ਘੰਟੇ ਲੋ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਰੈਂਟ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਗਰੋਸਰੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜੋਬ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕੰਮ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਓਨਲੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਗਰੋਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰੇਂਗਾ, ਲੋਕ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਹੀ ਰਾਤ ਭਰ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰੈਂਟ, ਗਰੋਸਰੀ, ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਮਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਊਂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬਲੈਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਪਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2023 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬੋਣਾ ਹੈ। हमेशा मुझे मेरा फर्स्ट सीड याद आता जो मैंने फर्स्ट टाइम बोना शुरू किया, और उसके बाद खुदावंद आपने मुझे इतना ब्लेस किया कि कभी रुकी नहीं। खुदावंद सदैव बोती रही हूँ। उसी रीति से इन लोगों की, इन कलीसियों की लाइफ, ऑनलाइन कलीसिया ब्रांचेस की लाइफ को भी सेम इसी रीति से करें कि आज जितने भी लोग बो रहे हैं प्रभु, इनका बोना कभी रुके ना। इतना आशीषों के झरोखे, आशीषों की बरसात इनके जीवनों में हो। खुदावंद किसी तरह की कमी घटी इनके जीवनों में ना रहे। फाइनेंशियली इन्हें ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। 3 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਫੁੱਲ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखो और कहो मैं ब्लेस्ड हूँ, और डिक्लेयर करो हर गुड वर्ड अपने लिए और अपने परिवार के लिए हो। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। अपने फाइनेंस के ऊपर खुदाबंद की ब्लेसिंग को घोषित करो, घोषणा करो अपनी बॉडी के ऊपर सेहत को, घोषणा करो इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे हम मांगते हैं, आमीन। हो जाए आशीष हमारी। ਸੇਮ ਡੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਬਟ ਸੇਮ ਡੇ ਹੀ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਐਜ਼ ਏ ਵੈਨ ਡਰਾਈਵਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੋਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਘਰੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੈਨ ਦਿੱਤੀ। 6 ਦੇ 6 ਦਿਨ ਵੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 6 ਦੇ 6 ਦਿਨ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਪੱਖੋਂ, ਹਰ ਜੋਬ ਪੱਖੋਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਪੱਖੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ-ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, वो अपने जीवित वचन के अनुसार लोगों की जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करता है। तो आइए सुनते हैं इनकी इस अमेजिंग टेस्टमनी को, और ये गवाही आपके फेथ को बढ़ाएगी यीशु मसीह के नाम में। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम महक है और आज मैं टोरंटो A&M ब्रांच से अपनी लाइफ की सबसे बड़ी टेस्टिमनी देने जा रही हूँ। अभी मेरी उम्र 22 साल की है और 2019 में जब मैं 15 साल की थी, मुझ पे किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसके कारण मुझ पे दुष्ट आत्मा के अटैक होने लग गए थे और मुझे पैनिक अटैक्स आने लग गए थे। मैं अपनी फैमिली से बिल्कुल कट ऑफ हो गई थी। मैं किसी से बात नहीं करती थी, मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया था। मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, मैं किसी से बातें नहीं करती थी। और 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो मैं बिल्कुल ही सबसे दूर हो गई, और इसी दौरान मुझे पैनिक अटैक्स आने शुरू हुए। और जब मुझे पैनिक अटैक आता था तो मेरी पूरी बॉडी शिवर करती थी, मैं बहुत कांपने लग जाती थी। मैं अपने नाखूनों को अपने स्किन में पूरा डिग कर लेती थी, जिसके कारण मेरी स्किन से खून आना शुरू हो जाता था। और खुद को कंट्रोल करने के लिए मैं अपने हाथों पे काटना शुरू हो जाती थी, और जब मैं होश में आती थी तो मेरे हाथों पे निशान होते थे मेरे दांतों के। और मुझे बहुत शर्मिंदगी फील होती थी इन सब चीज़ों से। और हमने बहुत अन्य जगहों पे भी हम गए मेरे इलाज कराने के लिए, लेकिन मुझे कहीं से भी कुछ भी आराम नहीं मिला। इवन मेरे अटैक्स और ज़्यादा बढ़ जाते थे। बढ़ते बढ़ते अटैक्स इतने ज़्यादा हो गए कि मुझे नींद में भी अटैक्स आने लग गए। जब मैं सोती थी तो मुझे स्लीप पैरालिसिस हो जाता था,
मुझे आवाज़ें सुनाई देती थी, लेकिन मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी चेस्ट पे बहुत ज़्यादा वेट आ गया है, मुझे सांस नहीं आती थी और मुझे रात को पायल की आवाज़ सुनाई देती थी। जैसे मैं अपनी आंखों को बंद करती थी सोने के लिए तो मुझे छन छन की आवाज़ें सुनाई देती थी। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी। मैं अपने मम्मा को उठाती थी कि आपको आवाज़ नहीं आ रही है, और वो मुझे बोलते थे कि कुछ नहीं, तेरा वहम होगा तो सो जा। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी और सुबह जब मैं उठती थी तो मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होती थी। मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता था, मैं बहुत डरी डरी रहती थी। और 2023 में मैंने IELTS इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा। मैं टीचिंग करती थी वहाँ पे, और जॉब करते करते मुझे वहाँ पे 2 बार पैनिक अटैक्स आए। जब मुझे दूसरी बार वहाँ पे पैनिक अटैक आया तो उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। मैं और ज़्यादा शर्मिंदा हो गई इसके कारण कि सब मुझे पागल बोलते हैं। सबको लगता है कि मैं मेंटली अपसेट हूँ या मैं सब में मैच नहीं कर पाती, मैं ब्लेंडिंग नहीं हो पाती लोगों में। मैं बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील करती थी। मुझे लगता था कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगी। मुझे कोई भी होप नहीं थी मेरे पास। मुझे लगता था कि लाइफ खत्म हो जाए। 2 बार मैंने एक्सपायर्ड दवाइयों का ओवरडोज लेके, और 1 बार मैंने अपने हाथ को काट के अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करी। मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। फिर किसी के कहने पे हमने साइकेट्रिस्ट के पास भी दिखाया, और जब मेरी EEG हुई तो डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट्स को देख के बताया कि मेरा ब्रेन एक नॉर्मल इंसान की तरह काम ही नहीं कर पाता। मैं चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाती, मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती। और उन्होंने बोला कि जिस कंडीशन में मेरे ब्रेन में थॉट्स होने चाहिए तब मेरा ब्रेन बिल्कुल नम है, और जब मेरे को शांति में होना चाहिए, मेरा माइंड पीस पे होना चाहिए, तब मेरे माइंड में मल्टीपल थॉट्स चलते हैं, और ये एक नॉर्मल पर्सन का ग्राफ नहीं होता। उन्होंने मुझे बताया कि जिस कैटेगरी में मैं आती हूँ मुझे बहुत एक्सट्रीम डिप्रेशन है। इसके लिए उन्होंने मुझे 5 थेरेपी सेशन के लिए कंसल्ट करा, और मुझे बहुत हैवी डोज की उन्होंने मेडिसिन भी दी। जब मैं दवाई खाती थी तो मैं सो पाती थी, बिना दवाई के मुझे नींद नहीं आती थी। और वो दवाई इतनी हैवी डोज थी मेरे लिए कि मेरी पूरी बॉडी नम हो जाती थी, मैं चल नहीं पाती थी। मुझे चलने फिरने के लिए दीवारों का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ती थी। अगर मैं सोती थी तो मैं लगातार 20-20 घंटे सोई रहती थी, और बिना दवाई के तो मैं 3-3 दिन सो ही नहीं पाती थी। हर जगह पे मैंने दिखाया, हर जगह पे हम डॉक्टर्स के पास गए, हमने अन्य जगहों पे हर एक उपाय करके देखा, लेकिन मुझे कहीं से भी कुछ भी आराम नहीं मिला। इवन मेरी कंडीशन और ज़्यादा वर्स होती गई। जब डॉक्टर के पास मेरी 5th थेरेपी थी तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करो, थोड़ा इस जगह से बाहर निकलो, यू विल फील बेटर। तो मैंने अपनी मामी के पास जाने का फैसला किया। वो शुरू से ही अंकुर नरोला मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़ी हुई हैं। फायर प्रेयर करी, उन्होंने वर्ड्स को रिलीज किया कि तुम्हारी जिंदगी से सारा दुष्ट आत्माओं का अंधेरा जाता रहे और खुदावंत का नूर तुम्हारे ऊपर चमके। अंधकार की शक्तियां निकल आए इन द नेम ऑफ जीसस। कमांड करो, रोशनी आए, रोशनी आए, लाइट देयर विल लाइट। कमांड करो, आउट आउट आउट। कमांड करो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। कमांड करो। जब उन्होंने ये वर्ड्स को रिलीज किया, बंद आंखों में मुझे ऐसा लगा कि बहुत रोशनी हो गई है, सब कुछ सफेद हो गया। और उस रोशनी में मैंने एक इंसान को देखा जो बाहें फैला के खड़ा हुआ है, और वो उस रोशनी से भी ज्यादा नूरानी है, उस रोशनी से भी ज्यादा चमक रहा था। फिर मैंने खुद को देखा कि मैं भाग के गई और मैंने उनको गले से लगाया। उस मोमेंट पे मैंने अपनी आंखों को खोला, और जैसे मैंने अपनी आंखों को खोला मुझे लगा कि सारा बोझ वो मेरे कंधों से उठ गया है। बहुत बहुत बड़ी चीज मुझे छोड़ के चली गई है। मैं इतना लाइट फील कर रही थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इतने सालों में मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास होप है। जिस शांति को मैं ढूंढ रही थी वो शांति मुझे प्रभु यीशु मसीह ने दी। वो खुद शांति का राजकुमार बनके मेरे पास आया और उसने मुझे इटर्नल पीस दिया। और अब 2 साल और 10 महीने हो चुके हैं। मैं बिल्कुल डिलीवर्ड हूँ, मैं हील्ड हूँ। मेरा ब्रेन एक नॉर्मल पर्सन की तरह काम करता है। मैं अच्छे से सो पाती हूँ, मैं खुद चल पाती हूँ, मैं अपने सब कामों को खुद कर पाती हूँ। और इस टेस्टिमनी के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का और खुदावन के दास का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। तारीफ करें सबसे जोर से, तालियों के साथ जोर से जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। फॉरेन ब्रांचेस सब जन अपनी जगहों के ऊपर खड़े होकर अपनी आंखों को बंद करें और अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। सब भाई सब बहन